نیوز وائز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ زاہد حسین اور عارفہ نور صاحبہ کو. 3 مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہونے والے میاں نواز شریف صاحب آج چوتھی مرتبہ نااہل قرار پائے ہیں اور اس مرتبہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت ان کی نااہلی تا حیات تصور ہوگی، کیونکہ آرٹیکل 62 کے تحت صرف ایماندار لوگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ارکان پارلیمنٹ بن سکے. اس فیصلے کے خلاف نون لیگ کا ایک سخت رد عمل آیا. مریم نواز شریف نے ابھی کچھ دیر پہلے سیالکوٹ میں سوشل کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو مائنس کرنے کی بات ہوتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں، اور جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ نون لیگ کو انتخابی میدان میں نہیں ہرایا جا سکتا تب ان کی نااہلی سامنے آتی ہے. پروگرام کے دوسرے حصے میں چلیں گے فاٹا کے دائرہ کار کا بل، جو 2017 کا بل جو آج سینٹ نے منظور کیا ہے. اب پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا دائرہ کار بھی فاٹا تک بڑھا دیا گیا ہے اور فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کو مرحلہ تبدیل کیا جائے گا. پہلے ہم چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوری پر. شریف کہ اس کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار اسی مقدمے میں نااہل کیا جا رہا ہے. پاکستان کے تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم کو تا حیات نااہل کیا گیا ہے. پہلی دفعہ ایک سپریم کورٹ نے طاقتور کے خلاف فیصلہ کیا ہے اور اب سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے ان سب کو منظر پیشانی کے ساتھ قبول کرنا. اب لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلوں کو تسلیم کرنا ہوگا. جی زاہد حسین صاحب، وہ مریم نواز کہہ رہی ہیں کہ 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ نااہل قرار دیا ہے. اب کہاں تک یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس کو سیاسی طور پر اپنے حق میں استعمال کر سکے گی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش انہوں نے کرنی چاہیے، انہوں نے کرنی ہی ہے کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کی جائے کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ایک میرٹ پہ نہیں ہو رہا. دیکھیں یہ چیز ٹھیک ہے، یہ انہوں نے جو عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے وہ تاحیات ہے، لیکن پابندی تو پہلے لگ چکی تھی نواز شریف صاحب سے. خالی اس کا جو فیصلہ جو آج ہوا ہے صرف اس کی مدت کا تعین کیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے صورتحال سے بہت زیادہ فرق نہیں پڑا ہے. صرف اتنی سی بات یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ امید تھی یا کسی پارٹی ورکر کو یہ امید تھی کہ یہ تاحیات پابندی نہیں لگے گی بلکہ 5 سال کے لیے یا 1 ٹرم کے لیے لگ سکتی ہے، تو وہ ایک لحاظ سے ختم ہو گیا ہے. اور لیکن یہ تھا کہ جو اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی فیصلہ جو ہے کوئی ایسا نہیں آیا جس سے شاکنگ جس کو فیصلہ کہہ سکیں. جو فیصلہ آیا تھا وہ تو پہلے آ چکا تھا جب ان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. اچھا، جو پہلے فیصلے آئے تھے وہ شاکنگ تھے؟ نہیں، میرا مطلب یہ کہ ڈسکوالیفائی جب کیا تھا اس وقت یقینی طور پہ جو اس کا ایک رد عمل تھا تو اسی قسم کا تھا. لیکن جب ابھی تو صرف تعین کیا ہے اس چیز کا کہ آپ کتنی مدت کے لیے نااہل ہیں، تو اس میں یہ ایک اصل چیز تو نااہلی ہے. اس کے بعد اس کی مدت کا تعین ہو جائے تو وہ جو ہے اس میں زاہد حسین صاحب 2 سال 4 سال 5 سال کی جو نااہلی ہے وہ ایک اور چیز ہے، ایک تا حیات نااہل ہو جانا. صحیح بات ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کسی شخص کو، میرا خیال تو یہ ہے کہ جتنے لوگوں سے بات ہوتی تھی یا جتنے بھی سیاسی جو تجزیہ نگار بھی کہہ رہے تھے، بہت ہی کم کو امید تھی کہ شاید 1 ٹرم کے لیے کریں گے. زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسا جو ہے اس میں بالکل ایک لوپ ہول موجود ہے اس پورے قانون میں جو 62 اور 63 کے تحت جو ہے جن کو ڈسکوالیفائی کیا تھا کہ اس کا جو ہے تعین جو ہے یہ آپ نے جو ہے نہیں کیا. تو یہ ان کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اس بنیاد پہ آپ نے ڈسکوالیفائی کیا تھا کہ وہ وزیر اعظم اور نواز شریف صاحب صادق اور امین نہیں رہے. تو ایک جو سب سے بڑی جو اس پہ بحث چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ صادق امین اگر ایک شخص ہے تو کیا وہ تھوڑے دن بعد درست ہو گیا. یہ سارے مسئلے چل رہے تھے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو مسئلہ تھا وہ یہی ڈسکوالیفیکیشن کا. لیکن اب جو سلسلہ جو آتا ہے ایک اور بھی ایک بحث چھڑ سکتی ہے اس میں آگے چل کے، اور وہ میرے خیال زیادہ اہم لگتی ہے اپارٹ فرام سیاسی اثرات کیا پڑیں گے. وہ یہ تھا کہ آرٹیکل 62(1)(f) کا اطلاق، جس میں تعلق نے کہا ہے کہ اس لیے ہے کہ دیانتدار، سچے، قابل اعتبار اور دانا افراد عوامی نمائندے بنیں گے. یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات آئی ہے.
मसला ये कि नवाज शरीफ शाह साहब रिग्रेट कर रहे होंगे क्योंकि 18वीं तरमीम में ये रखा गया था कि जो इसको आप हटा दें, पीपल्स पार्टी की तरफ से तजवीज़ उन्होंने नहीं रखा। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसका एक प्रेसिडेंट सेट हो गई है, कल जो है अगर आप यहाँ पे जितने भी हमारे लीडरान हैं या जो है मेंबर नेशनल असम्बली या पार्लियामेंट में जो लोग आते हैं, बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा कि जो एक रिजिड, एक स्ट्रिक्ट जो ये है इसकी इंटरप्रिटेशन है, क्या उस पर सब पे इतलाक़ होगा? देखिए, इसमें ये सबसे पहले तो आज बात यही होती है ना कि अब आप सुप्रीम कोर्ट को तो इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। उनके सामने कॉन्स्टिट्यूशन आया, उन्होंने उसको इंटरप्रेट कर दिया जो लूप होल था। कि असल इशू तो वही है कि जब पार्लियामेंट के पास एक चांस था इसको ठीक करने का, इस मसले को, क्योंकि ये डिक्टेटर्स के ज़माने की डाली हुई 62 की वो हैं, तो निकाल देते। और उस वक्त PMLN ने नहीं इसको निकलने दिया क्योंकि शायद उनका ख्याल था कि हमारे ऊपर तो ये कभी लगेगा नहीं, ये हमारे मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। तो वो आज वही बात कि आप पार्लियामेंट के अंदर जब सही काम नहीं करेंगे, एक खौफ भी था उनको कि हम अगर इसको हटाएंगे तो रिलीजियस जो एलिमेंट्स है वो क्या कहेंगे। चले, वो रिलीजियस एलिमेंट से पहले उनको बाकी जो थे वो पड़ गए। सो अब क्या इसका वो कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी की बात की है। उन्होंने ये पूरा अपनी जो वो रीजनिंग देते हैं जजमेंट में, वो इसको डिस्कस करते हैं कि ये कब ये डाली गई चीज़ें, कब कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह ये आर्टिकल्स में तब्दीली की गई, और जब 18th अमेंडमेंट पास हुई जो बहुत एक्सटेंसिव थी तो इसको नहीं छुआ गया। सो उन्होंने ये सारा हवाला दिया है। दूसरा ये है कि ये जब से, जो मेरी एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन है कि जब से ये आर्टिकल्स इंसर्ट किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सुप्रीम कोर्ट ने जनरली, कोर्ट्स ने इन जनरल इनको बहुत नैरो इंटरप्रिटेशन दिया इन द कॉन्टेक्स्ट कि उन्होंने इसको सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन पे के केसेस के अंदर इस्तेमाल किया है। बिकॉज ऑब्वियसली जो हमें भी एक बात हम बार बार करते हैं कि सादिक और अमीन तो इतनी एक जनरल टर्म है कि उसमें आप कुछ भी ला सकते हैं। अगर आप नोट करें कि ज़्यादातर केसेस जो इसमें आए हैं, जिनमें जजमेंट्स आई हैं, वो अमूमन फाइनेंशियल इशूज़ के केसेस होते हैं, परजरी पे। जी। बट आई मीन वो जो एक हमें फिक्र या वो खदशा होता है कि जी वो तो बहुत ही एक जैसे डिग्री का मसला जनरल हो जाएगा या वो बहुत मॉरल इश्यूज या कैरेक्टर पे चला जाएगा, उस तरह के अभी आई डोंट थिंक ऐसे कोई डिस्क्वालिफिकेशंस हुए। और तीसरी बात जो भी जाहिद साहब कह रहे थे, मगर फिर भी इसका जो लीगल प्रेसिडेंट है वो ये सेट हुआ है कि किसी भी MNA के ख़िलाफ़ अगर आपको कोई फाइनेंशियल सवाल हैं उसकी डिक्लेरेशन के हवाले से, और आप सुप्रीम कोर्ट वो केस ले गए, तो बेसिकली विदाउट अ ट्रायल ऑफ सॉर्ट्स, विदाउट ड्यू प्रोसेस, वो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर लाइफ हो सकती है। जो आज ये फैसला हुआ है उससे तो यही हो रहा है जो मियां नवाज शरीफ के केस में भी हुआ और जहांगीर तरीन के भी केस में हुआ कि आपका वो ड्यू प्रोसेस तो नहीं हुआ ना, ट्रायल तो नहीं हुआ ट्रायल लेवल पे। सुप्रीम कोर्ट में एक वो ट्रायल हुआ और उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा होता, उसके बाद वो अपीलेट में जाते हैं, अपीलेट के बाद हाई कोर्ट में जाते हैं, तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। वो ड्यू प्रोसेस जो होता है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर जो ट्रायल ऑफ फैक्ट होता है वो हो जाए और वो ड्यू प्रोसेस हो, वो अब ये लीगल प्रेसिडेंट सेट हुआ है। थोड़ा सा फर्क था। बात ये कि नवाज शरीफ साहब का जो है वो ये नहीं हुआ था कि कोई ऐसी चीज़ सामने आई हो फाइनेंशियल करप्शन या उसमें, बल्कि एक जो वहाँ पे उनका पानामा पे एक केस शुरू हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर हेयरिंग की थी सारी, तो उसमें जो बात आई थी वो ये थी कि जो है उन्होंने एक लिहाज से कोर्ट के सामने सही बात नहीं की या इस मसले को साफ तरीके से नहीं किया। अकामा का मसला भी एक आता था और एक परजरी के उसमें आया था। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का जो आता है वो थोड़ा सा मामला उससे दूसरा है। उसमें ये था कि उनका जो केस चल रहा था उस पर यह था कि उन्होंने गलत बयानी की थी किसी और मसले पे, उनका इसमें ये चीज़ें जो हैं वो नहीं थी। जाहिद साहब, दोनों के केस में जो इशू था वो तो यही था ना कि आपकी डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स जो है उसमें से कोई चीज़ मिसिंग है। नवाज शरीफ साहब के केस में जो था वो उनकी वो सैलरी थी और जहांगीर तरीन साहब के केस में वो जो उनकी कोई प्रॉपर्टी है। सो बेसिकली मिस डिक्लेरेशन। आप अगर जजमेंट को देखें तो उन्होंने शुरू में जो लॉयर्स उनके सामने पेश भी हुए, कुछ एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्लाइंट्स, आसमा जहांगीर साहिबा भी थी, मुनीर मलिक को उन्होंने कोर्ट ने रिक्वेस्ट की थी कि आप आएँ, तो उनमें जो कुछ आर्ग्यूमेंट सामने आई तो उन्होंने इस तरह ही की कि जो मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट है उसमें जब आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आर्ग्यू करते हैं तो ये क्लियर नहीं होता कि वो डिलिबरेट थी या अनइंटेंशनल थी। और
ان کی ایک آرگیومنٹ یہ تھی کہ ان انٹینشنل اگر مس ڈیکلریشن ہے تو اس پہ اتنی سخت سزا کیا ہونی چاہیے. بیسکلی ان کی آرگیومنٹ یہ تھی کہ آپ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, وے کرنا چاہیے کہ سزا کیا ہے اور جرم کیا ہے. تو یہ ایک آرگیومنٹ تھا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ صحیح یا غلط, بٹ بات یہ ہے کہ یہ باتیں ہائی لائٹ کی گئی تھیں کہ شاید جو لائف ٹائم بین ہے, کہ ہو سکتا ہے کہ اگر مس ڈیکلریشن ان انٹینشنلی ہو گئی ہو, غلطی سے ہو گئی, تو کیا اس کے لیے لائف ٹائم بین لگنا چاہیے کہ نہیں. تو وہ یہ صرف ابھی لیکن اس میں ایک اور مسئلہ بھی آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سپریم کورٹ نے جو ہے بہت ہی نیرو وہ اس میں ابھی تک لیا ہے, انہوں نے بہت سارے اور مسئلے مسائل کو نہیں چھیڑا ہے. اور کیونکہ جو ہے اگر صادق مطلب لیکن اس بات کی گارنٹی نہیں ہو سکتی. یہ ایک جب پریسیڈنٹ سیٹ ہوتا ہے, جب ایک قانون موجود ہے اور اس قانون کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے, تو یہ ہے کہ آگے چل کے صادق امین, کیونکہ اس میں اگر آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے چیزیں جو ججمنٹ کو انہوں نے اپنی جسٹیفائی کیا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بھی کیا ہے. جی بالکل. یہ تو زاہد صاحب پھر ایک ہمیں ہمیشہ فیئر رہتا ہی ہے نا کہ آپ اس کو بہت جنرل ہو جائے گا یا اس کے اندر بہت سی ایسی چیزیں آ جائیں گی جو شاید ہم نہیں چاہتے کہ کورٹس کے اندر ایشوز جائیں. یہ کہ بجائے زاہد صاحب, یہ جب پاناما کا کیس آیا تھا تو بڑا ہائی پروفائل کیس تھا. اس میں یہ غالباً ایک امکان بنتا جا رہا تھا, کچھ حلقوں میں یہ بات آتی جا رہی تھی کہ ایک ایسے آرٹیکل, ایسی شکیں جن کو بیزیسٹ آرٹیکلز نہیں کہا جاتا تھا, جو اس طریقے سے ایکٹیو نہیں ہوئی تھی جس طریقے سے اب ایکٹیو ہوئے ہیں. تو اس وقت بھی کچھ حلقوں میں یہ بات کہہ رہی ہے کہ اب ان کو 62, 63 اور یہ 62 1F اس کی طرف آنا چاہیے. اگر اس ایک وقت میں کوئی ایکٹیویٹی ہوئی تھی پارلیمنٹ فرنٹ پہ جس میں پیپلز پارٹی ساتھ آ سکتی تھی, زیادہ پرابلم تھا مولانا کا پرابلم تھا, UIA کا پرابلم تھا, یا جماعتیں سے, ٹھیک ہے, یا تعین تو کر سکتے تھے, سزا کا تعین کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, کہ 5 سال کے لیے ہوگی یا 4 سال کے لیے ہوگی, یہ بھی تعین تو کر سکتے تھے. یہ اس وقت جب پاناما کا کیس کورٹ کی طرف سرک رہا تھا, میرے خیال اس وقت یہ لاسٹ چانس تھا, آخری چانس تھا کہ وہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, مطلب مذہبی جماعتوں کو مائنس کر دیں, غالباً ان کے مسائل کچھ اور تھے, لیکن وہ سیاسی جماعتوں کے مسائل وہ نہیں تھے جو مذہبی جماعتوں کے مسائل ہوتے ہیں. تو وہ ایک میرے خیال لاسٹ ایک چانس تھا. لیکن اس میں ستار اس میں بہت دیر ہو گئی, تو کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاناما کا کیس جب سرک رہا تھا کورٹ کی طرف, میں اس کی بات کروں جب پاناما پیپرز آئے تھے, اسی وقت میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس وقت یہ ان کو پی ایم ایل اے اصل میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت بھی بار بار یہ بات پی 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 نے تو کورٹ گئی ہی تھی نا وہاں کے, اس آپ پاناما کے ایشو کو پارلیمنٹ کے اندر لے آئے, انہوں نے کہا تھا, اور اس کا بھی یہی آبجیکٹیو تھا جو بیسک وہی تھا کہ ایسی جو بھی چیزیں ہیں آپ ان کو پارلیمنٹ میں ہینڈل کریں, آپ ان الیکٹڈ انسٹیٹیوشنز کے پاس پولیٹیکل ایشوز مت لے کے جائیں. لیکن اس میں اسی بات آ رہی تھی کہ لیکن اس میں بات ہوگی, ایک چھوٹی سی بریک لے لیں, پھر جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں بریک کے بعد چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اسی پہ بات جاری رہے گی. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے ظاہر حسین صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. ہاں نہیں, میں وہی کہہ رہا تھا کہ ایک پریسیڈنٹ جب کھلتی ہے تو اس کے بعد اس کے جو ہے کافی ایک دور رس اثرات بھی ہوتے ہیں, لیکن یہ تو ساری جو ہے وہ عدالت کی باتیں ہیں. اصل مسئلہ جو اب آتا ہے کہ یہ فیصلہ, حالانکہ جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ جو ہے کوئی بہت زیادہ انپریڈکٹیبل نہیں تھا, لیکن اس کے اثرات جو ہے نفسیاتی طور پہ اور سیاسی طور پہ میرے خیال گہرے پڑیں گے. ابھی تک تو ایسا لگتا ہے جیسے مریم نواز کی آج تقریر تھی سیالکوٹ میں, تو ان کا تو ایسا لگتا تھا کہ جو ہے جتنی دفعہ جو ہے ان کو سزا ہوتی ہے, ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, اتنی زیادہ جو ہے نواز شریف صاحب مضبوط ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک حد تک جو ہے کہ ماضی کی مطلب دیکھا جائے تو واپس تو ضرور آئے ہیں, لیکن یہ میرے خیال اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ جتنی دفعہ یہ اگر ان کے اوپر سزا ہوتی ہے تو زیادہ مقبول ہوں گے, اس پہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ وہ ہو سکتا ہے یا نہیں. یہ دو چیزیں ہیں نا, ایک تو ہماری پالیٹکس میں تو اتنی انسرٹنٹی ہوتی ہے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب یہ چھوڑ کے ملک کو گئے تھے 2000 میں گئے تھے, ہاں 2000 میں جب ڈیل کر کے گئے تھے, بھیجا گیا تھا, اور ان کا کہنا ہے کہ 10 سال کے لیے ایٹ لیسٹ ذاتی طور پہ میرا یہی خیال تھا کہ دس از دی اینڈ آف پی ایم ایل این, اور یہ نواز شریف صاحب کی بھی پالیٹکس کی بالکل اب کیا بچ گیا.
मगर आप देखें कि वो वापस आए, ना सिर्फ वापस आए, ही इज़ दी ओनली प्राइम मिनिस्टर जो एक कू में रिमूव किए गए थे और फिर उन्होंने इलेक्शन जीता है और वो वापस आए हैं। कहने का सिर्फ मकसद ये है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इतनी अनसर्टेन होती है कि कुछ भी हो सकता है। असल में पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जो हम बात करें, जैसे आपने जब ये वापस आया 2008 के इलेक्शन का हवाला जो दे रहे हैं, तो उसका एक पस मंज़र था। उसमें एक चीज़ सवाल हो सकता है, क्या वो नवाज शरीफ साहब की मकबूलियत थी या जो है मिलिट्री हुकूमत जो उस वक्त की थी, जनरल मुशर्रफ का जवाल शुरू हो गया था, उनके खिलाफ जो है एक नफरत सी थी, तो एक ऑल्टरनेटिव की सूरत में जी वही तो मैं कह रही हूँ ना, कि मैं तो सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स इतनी अनसर्टन है कि बहुत दफे हमें लगता है कि कोई चीज जो है अब खत्म हो गई है और वो फिर उसकी एक रिसर्जेंस हो जाती नहीं, है। इस वक्त ये पहली मर्तबा ये हुआ है कि अपनी ही हुकूमत में वो नाहल हुए हैं, तो क्या अपनी ही हुकूमत के होते हुए नाहल हों और फिर वो नाहली के चक्कर में अवामी मकबूलियत ले जाएं? ये अब ये पहली दफा ये दूसरा सवाल है। ये तो अब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पे आ रहे हैं ना, कि अगले 2018 के इलेक्शन में क्या होगा। नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी वो है कि जो है कि पहले जितनी, जैसे नवाज शरीफ साहब को हमने जो पहले सज़ा हुई थी, वो एक मिलिट्री गवर्नमेंट ने उनको हटाने के बाद एक सज़ा दी थी, तो एक विक्टिमहुड का जो एक तस्वुर जो बन के आता है कि उनको हटाया गया और उसके बाद डिक्टेटर ने, मिलिट्री डिक्टेटर ने उनको सज़ा के तौर पे मुल्क से बाहर कर दिया। हालांकि उसकी हकीकत शायद कुछ और भी है, लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। जैसे मिस्टर भुट्टो के साथ भी हुआ था, उसमें उनका हुकूमत का तख्ता उल्टा गया था, मिलिट्री एक डिक्टेटरशिप थी जिसके अंडर में उनको सज़ा और फिर आगे चल के जो है उनको सज़ा मौत दी गई। लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में ये हुआ कि एक ऐसी सियासी पार्टी जिसकी हुकूमत न सिर्फ मरकज़ में है बल्कि सूबे में, सबसे बड़े सूबे पंजाब में भी है, और उसी के ही मौजूदगी में उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाता है और सज़ा भी दी जा रही है। ये पहली दफ़ा हुआ है। थोड़ा सा पैरेलल पीपीपी की हुकूमत से इतना है कि उनका भी एक प्राइम मिनिस्टर घर भेजा गया था। दो ऑफ कोर्स आई विल बी द फर्स्ट टू एडमिट कि यूसुफ रज़ा गिलानी के स्टैचर में और मियां नवाज शरीफ के स्टैचर में बहुत फ़र्क है, मगर स्टॉक में 4-5 बंदे और पड़े हुए थे कि चलो वो जाता है, दूसरा ये है, तीसरा दे देंगे, चौथा दे देंगे। कहने का मकसद ये है कि डीस्टेबलाइज इस तरह हुकूमत को करना मुझे लग रहा है और प्राइम मिनिस्टर को हटाना। अब ये जो पोस्ट 2008 हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन आया है, शायद इसका ये रेगुलर हिस्सा या फीचर ही ना हो कि हुकूमत को झटके लगते रहेंगे, कभी धरने के थ्रू, कभी देखें तो इमरान खान साहब इसी फैसले की रोशनी में कह रहे हैं कि जी अब खुशहाली आएगी, ये आएगा वो आएगा। यानी कि एक तरफ मातम है, एक तरफ वो कहा जा रहा है जुल्म की इंतहा होगी, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी ये तो पहली दफ़ा हो रहा है तारीख में, और ये इस तरह के इकदाम अगर पहले होते तो ये मुल्क पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। अब अपनी अपने लेंसेज से, अपनी अपनी ऐनक से दोनों पार्टियाँ देख रही, सियासी बयान। अब वो कितना इन फैसलों के जरिए जो पीटीआई चाह रही थी इतने सालों से, इमरान खान जो साहब जो चाह रहे थे कि वो कहाँ, वो कब पॉसिबल इस फैसलों की वजह से क्या वो उस जगह पे पहुंच सकेंगे जहाँ पर वो एक ज़माने में होता था ना कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल नवाज आमने सामने खड़े होते थे। अब वो उस जगह पे इन फैसलों की वजह से कोई गुंजाइश बनेगी कि शायद? सबसे बुनियादी चीज़ ये आती है कि जो है इमरान खान, बल्कि सबको अंदाज़ा है कि अगर PMLN का या नवाज शरीफ साहब के जो है मकबूलियत में कमी आती है या जो है उनका सियासी एक इन्हतात होता है, तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो PTI उठाएगी। लेकिन इमरान साहब की जो है वो जो बहुत ज़्यादा खुशफहमी है कि जो है उसकी वजह से सारे हालात बदल जाएंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे सियासतदानों में कि जब फैसले अदालतों के उनके हक़ में आते हैं तो बहुत, उसमें हक़ से मतलब ये है कि उनके फ़ायदे में जाती है बात, तो वो जो है वो उसको बड़ा बढ़ा चढ़ा करते हैं। ये लेकिन एक और याद होगा आपको कि जब पिछली दफ़ा इफ्तिखार चौधरी साहब के इलेक्शन हो रहे थे, इमरान खान का स्टेटमेंट आपको उस ज़माने में याद है कि अब मुझे यकीन है कि इलेक्शन बिल्कुल साफ़ सुथरे होंगे, लेकिन बाद में जो है वो इफ्तिखार चौधरी को उन्होंने मोरदिल सामने, उस वक्त तो ना तजर्बाकार थे, उन्होंने इस मैच स्केल के पहली दफ़ा इलेक्शन में जा रहे थे, उन्होंने तजर्बा सीखा, उन्होंने कहा जिसके बारे में मैं कह रहा था कि वो शफाफ इलेक्शन होंगे तो वहीं पे गड़बड़ होगी। छोटी सी मेच्योरिटी आ गई है, ये भी एक सवालिया निशान है इसके ऊपर। मेच्योरिटी आ गई है, ये भी है। ये इस तरह के जितने भी सवाल हैं आगे से वो साइन ऑफ इंटेग्रेशन लगा दिया करो। किसी को नहीं पता होता, उनको खुद नहीं पता होगा कि वाकई मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ कि मेरे बारे में ये बात कहा जाए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जाके फिर बात करेंगे फाटा के हवाले से जो तरमीमी बिल सेनेट ने मंजूर किया है।
वेलकम बैक जी जाहिद हुसैन साहब। ये फाटा पे मैं कल बात कर रहा रिफॉर्म्स की बात हो रही है ना, रिफॉर्म की बात। पहले से हम पहले कैलकुलेट कर रहे थे कि कितने मिनट रह गए, वो कहने का 10 मिनट हो 6 मिनट। चलिए ठीक है। अब मसला ये आता है, देखें ये आज जो है सेनेट ने बिल पास कर दिया है जिसका मकसद ये था कि जो जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की और पेशावर हाई कोर्ट की वो फाटा तक बढ़ाया जाएगा। और ये जो है नेशनल असेंबली में काफ़ी अरसे से पास हो चुका है और इसको मतलब 6 महीने लग गए हैं यहाँ पे लाते हुए। लेकिन ये जो है बिल जो एक लिहाज से बहुत डिसेप्टिव है। अगर आप इसको देखें तो एक तो सबसे बुनियादी चीज़ ये आती है कि ये फाटा रिफॉर्म का सिर्फ एक हिस्सा था जिसकी तजवीज़ की गई थी, जो कैबिनेट ने भी पास कर दी थी। उसमें सिर्फ एक हिस्सा ये था कि जुरिस्डिक्शन के बारे में थे कि सुप्रीम कोर्ट के और पेशावर हाई कोर्ट के यहाँ पे होगी। लेकिन इसमें भी जो है ये पूरी तरह जो है एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि यानी लफ्ज़ों से खेला गया है कि ये भी आज ये अगर बिल पास हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि ये कल से ये तमाम जो है कबायली इलाकों पे इसका इतलाक़ शुरू हो जाएगा। इसमें जो एक शर्त में एक रखी गई है वो ये था कि जो है वो फेडरल हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ एक मरहलावार जो है वो इसका इतलाक़ होता जाएगा। मतलब ये कि कल ये फेडरल गवर्नमेंट ये फैसला करती है कि इसका मोमन एजेंसी पे इतलाक़ होगा या मोमन एजेंसी के किसी हिस्से में होगा। तो मसला ये आता है कि ये मसला नहीं है। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि मेन स्ट्रीम में लेके आना है फाटा को तो उसका इतलाक़ तो फौरी तौर पे होना चाहिए। और मेरा ख्याल ये है कि सियासी पार्टियों पे भी सब नहीं, ये तो सारी सियासी जमातें शामिल होंगी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि नेशनल असेंबली में जब ये पास हुआ था तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा हाँ मिस्टेक हो गई क्योंकि फरतुल्लाह बाबर साहब ने सेनेटर थे, अब वो चले गए तो कोई शायद इसको देखने वाला भी नहीं था, उन्होंने इस चीज़ की निशानदही की थी और उन्होंने ये चीज़ ऑब्जेक्शन उठाया भी था। पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्शन ये क्यों किया गया होगा वैसे आपस की बात? ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि इससे साफ जाहिर है कि हुकूमत को इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है कि जो वादे किए थे उन्होंने मेन स्ट्रीम करने के या जो है अल्टीमेटली इंटीग्रेशन ऑफ फाटा एरियाज टू केपी, वो जो है बातें तो हो गई थी लेकिन कभी भी कोई संजीदा कोशिश नहीं की। आपको याद होगा कि 1.5-2 साल पहले एक सरताज अजीज़ की क़यादत में जो है कमीशन बना था फाटा रिफॉर्म्स के बारे में और वो जो है रिफॉर्म जो उनकी रिकमेंडेशन थी वो काफ़ी 6-8 महीने तक जो है उन्होंने सबसे बातचीत की थी। जितने बहुत डिटेल्ड प्रपोजल है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ये नहीं है। निशान प्रोड्यूसर कान में कह रहा है कि वो फजलुर रहमान के एक टेलीफोन की वजह से काम खराब नहीं उसके वो तो आते उससे एक टेलीफोन नहीं होती, एक बहाना होता है। देखिए बात ये थी कि इतनी ज़्यादा थी और उस वक्त तमाम सियासी पार्टियाँ जो मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियाँ थी वो सब मुत्तफिक थी उस पर। उसमें जो है आपकी मैं नाम ले लेता हूँ, जमात इस्लामी, पीटीआई, एएनपी, पीएमएलएन के जो हिस्सा जो है वहाँ पे केपी में वो सब इस बात पे मुत्तफिक थे। एक शख्स एक पॉलिटिकल पार्टी ने इस पे एतराज़ उठाया था जो कि इंटीग्रेशन के हवाले से वो फजलुर रहमान की पार्टी थी और दूसरी अचकज़ई साहब की पार्टी थी। और देखिए इसमें ये बहुत अहम बात है कि जब तक इस फाटा की मेन स्ट्रीमिंग नहीं होगी और आप उधर एक्सटेंड नहीं करेंगे अपने सिविलियन इंस्टीट्यूशंस तो तब तक फ़ौज की वहाँ हैवी प्रेजेंस रहेगी। वो बार बार ये बात वो करते रहे हैं अपनी प्रेस रिलीजेस में, अपनी मीटिंग्स के अंदर कि वी कैन नॉट अफोर्ड टू लेट देयर बी अ वैक्यूम इन फाटा एनी मोर। सो जो वो इसका भी मतलब कि एक तरफ हमारी एक कांस्टेंट शिकायत रहती है कि सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है वो एक तरफ बहुत वो टिल्ट कर जाता है, मगर जहां मौका मिलता है कि आप सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड कर सकें तो वहां वो फिर रीज़न की वजह से वही जो बात के जी फजलुर रहमान साहब नहीं चाहते थे तो ये नहीं हुआ और वो बीच में बात रह गई। लेकिन मेरे ख्याल फजलुर रहमान साहब को तो सिर्फ बहाना था। फजलुर रहमान को देखें वो, अब मैं मुतालिक क्या बात करूं कि जो है वो कोई बात नहीं कर अब वो मसला है कि उनके वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, सियासी मकासद भी होते हैं। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट ने, आपको याद होगा कि कैबिनेट में भी ये पूरा पास हो गया था, उसके बाद जो है ये तय भी हो चुकी थी टाइम भी और वक्त भी कि नेशनल असेंबली में कब पेश किया जाएगा। मुझे अच्छी तरह याद है कि बाकायदा जो है केपी में और फाटा में इस पर खुशियाँ मनाई जा रही थी कि अल्टीमेटली जो है जो फैसला होने जा रहा है और मेन स्ट्रीम। मालूम हुआ कि अचानक मेरे ख्याल ये उस वक्त वज़ीर आज़म नवाज शरीफ थे, वो इस्तांबुल में थे और उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया कि आप रोक लें इसको, अभी ना करें क्योंकि
फजलुर रहमान साहब जो नहीं मान रहे। अब मसला फजलुर रहमान कैबिनेट का मिनिस्टर भी था, वो भी कह रहा था कि जी किसी इदारे के अब्दुल कादिर बलोच वगैरह किसी इदारे की तरफ इशारा करके या कहा था कि जी उनको कोई इतराज़ात है, उनके कोई खदशात है, उनका कोई हंच है। लेकिन बात वही आती है कि जब आप मैं ख्याल कल की कोर कमांडर की मीटिंग का जो फैसला देखें उसमें भी कहा जा रहा है मेन स्ट्रीमिंग। अब यहाँ पे इतने गेम्स होते हैं कि इस बात समझ में नहीं आती है कि कौन किसका क्या चल रहा है मामला। बात यह है कि जो हमसे जो बात होती है और लोगों से आप PMLN से बात कर लें फलाने, हाजी मेन स्ट्रीमिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद कहाँ पे रुकावट है, आप फ़ौज से बात कर लें, वो जी कि जब तक मेन स्ट्रीमिंग नहीं होगी हम वहाँ से अपनी फ़ौज नहीं हटा सकते हैं और ये होगा। तो लेकिन बात ये थी कि इसका मतलब साफ है कि ना विल है कहीं पे और ना अगर फ़र्ज़ कीजिए नवाज शरीफ साहब कन्विंस होते या जो है PMLN की गवर्नमेंट कन्विंस होती, और मैं समझता हूँ कि और पार्लियामेंट में उनकी पूरी सपोर्ट थी, अगर उसको लेके आते चाहे किसके इदारे की तरफ से भी अगर वो थी, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर फ़र्ज़ किए किसी थी तो कौन उसको रोक सकता है? वो 4 दफ़ा नाअहल हो गए आप तक। नहीं पार्लियामेंट के अंदर जाते ही नहीं थे। और इसको हमें ये भी तो देखना है कि 1947 से आज का दिन आ गया, आपके मुल्क का एक हिस्सा है जिसमें FCR जैसा एक कानून मौजूद है। इट्स एब्सोल्युटली बिल्कुल बदतरीन, इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं है कि अगर किसी एक ने कुछ गलत किया है तो आप उसकी सारा जो कबीला है उसको उठा के आप जेल में डाल सकते हो, और वो फैसला एक आदमी करेगा, वो पॉलिटिकल एजेंट जो ब्यूरोक्रेटिकली अपॉइंटेड है। तो आप उस तरह तो देखें ना कि आई मीन जस्ट लुक एट दिस लॉ कि ये कैसे हम कह सकते हैं कि आज के दिन भी ये मुल्क के किसी भी हिस्से में इम्प्लीमेंट हो, लीव अलोन 7 डिफरेंट एजेंसीज। वो लोग इंसान नहीं हैं क्या? मतलब कि कैसे हम कह रहे हैं कि ये जो है कि फजलुर रहमान ने कह दिया या फौज ने कह दिया या फलाने ने कह दिया तो ये हुआ नहीं, और अब मतलब कि जाते जाते जहां वो इतने टैक्स रिफॉर्म्स भी कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा एहसान कर दिया है, वो भी वही तो मैं कह रही हूँ ना, क्या एहसान कर दिया है उन्होंने कि वो एक अभी तक और कुछ किया नहीं है, सिर्फ वो उन्होंने की वजह से आप इसको एक बड़ा कदम नहीं कह सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए बात सुने, ये अभी तो उन्होंने कोई एक भी हमें डेडलाइन नहीं बताई कि कब शुरू करेंगे। ये अगर फर्ज किए जो ये तो हो सकता है कि ये इलेक्शन तक कुछ भी ना करें। कल ममनून हुसैन साहब साइन कर दें, फर्ज कीजिए अगर ये थोड़ा सा एक हद तक जो एक पॉजिटिव स्टेप होता कि अगर इसमें लिखा जाता कि जिस दिन भी ये साइन होगी लॉ बन जाएगा उस दिन से उसका हो जाएगा, तो मैं फिर तो कोई बात बन के आती थी। इसमें तो लिखा हुआ है कि इसके बाद भी फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी होगी कि किस इलाके में ये इसका इतलाक करें और किस इलाके में अभी ना करें, और किस तारीख से करें और हम आपको नोटिफिकेशंस के थ्रू बताते रहेंगे। वही तो मैंने कहा ये तो हो सकता है कि इलेक्शंस के बाद भी कुछ ना हो। नहीं मुझे नहीं लगता है कि होगा। बात ये कि कल जो है ये वो कहेंगी जो एक डिस्ट्रिक्ट जो है मोहम्मद एजेंसी का हम वहाँ पे इतलाक करेंगे, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये हुआ कि जो इस वक्त एक सबसे बड़ी बात जो है लोगों के शायद हमारे चाहे वो सियासी रहनुमा हो चाहे मिलिट्री के रहनुमा हो, उनका सबको बात समझ में नहीं आ रही है कि ये चीज़ डिले जितने करेंगे उसमें लोगों की जो एक हम कोशिश करते हैं कि बात समझाने की, जो जिनको बात समझनी चाहिए थी उनको ज़ाहिद हुसैन साहब कह रहे हैं समझ नहीं आ रही इस हवाले से। तो अगर कोई बात समझाने की कोशिश होगी तो छोटे से एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद एक मरतबा फिर प्रोग्राम में। जी जाहिद साहब आप कुछ बता रहे थे। नहीं देखिए एक बात यह है कि एक तो सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ हुकूमत की नाकामी बल्कि पूरी रियासत की है, जिसमें अभी हम बात कर रहे थे कि मिलिट्री को पहले कुछ और बात करती है, शायद अंदर कुछ और उनकी रिजर्वेशन है, हुकूमत के अपने कोई मसाइल बन के आते थे। मसला ये है कि जब वो आप नाफिज नहीं करेंगे तो उसकी बदइतमानी बढ़ेगी। इस वक्त सूरत हाल फाटा की जो है उससे ज़्यादा बदतर है जो कि 15 साल पहले थी। उसमें यह था कि जो है पहले एक सिस्टम था जिसको हम FCR का कहते हैं, जिसमें जो है आपके पॉलिटिकल एजेंट्स वर ऑल पावरफुल, वो पूरा सिस्टम चलाते थे। मलिक वहाँ जो आपके अपॉइंटेड ट्राइबल एल्डर्स जो होते थे उनके मदद से चलाते थे। जब आपने मिलिट्री ऑपरेशन किया तो वो जो है वो सिस्टम भी टूट गया। उससे पहले जाहिद साहब जो तालिबान की राइज थी एंड पार्टली जो अफगान जिहाद का इलाका था उसके अंदर भी ये काफी लंबा, मेरे सिर्फ ये कहने का मकसद है
कि ये ज़रा थोड़ा लंबा प्रोसेस था, आहिस्ता आहिस्ता फिर तालिबान की राइज हुई, बट अब वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है सिस्टम। इसमें भी रियासत की काम थी कि जब 80s में आपने आहिस्ता आहिस्ता जो एम्पावर करना शुरू किया जो मुजाहिदीन को, तो मुजाहिदीन बिकेम मोर पावरफुल देन आपकी जो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके साथ। वो यू राइट एक्चुअली कि वो बतदरीज टूटता चला गया, और जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ तो फिर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गया। और उसके अंदर फिर बहुत सारा एक बड़ा रोल जो था वो उसके अंदर जो वहाँ ड्रग लॉर्ड्स पैदा हुए उनका भी था, जो मदरसे थे, मुल्लाज थे, वो सो उसकी वजह से सारा वो ये था कि वो जो सिस्टम था जिसमें ट्राइबल एल्डर जो था वो पॉलिटिकल एजेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके बाकी सबको संभाल के रखता था, वो उसकी अब वो अथॉरिटी नहीं रही थी। और अब जो TTP आई और उसके बाद फौजी ऑपरेशंस हुए, तो एज यू वर सेइंग कि वो तो बिल्कुल अब खत्म हो गया है। तो वो वहाँ वैक्यूम है, और वो वैक्यूम अब या तो फौज वहाँ बैठी रहेगी उसको फिल करती रहेगी, या कोई ऑल्टरनेटिव पेश करना पड़ेगा। देखें उसमें से आप ये देखें कि जो ये पूरा फाटा एरिया एक कॉन्फ्लिक्ट जोन था, जहाँ से 10 साल से जो है एक लिहाज से तालिबान की एक इंसर्जेंसी थी, दूसरा मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था। अब उसमें जो लोग बेचारे 10-12 साल जिसको अपने घरों से जो है बाहर रहे, उसका नतीजा ये है कि उनमें एक सेंस ऑफ वो जो जिसको कहते हैं ना कि एक फ्रस्ट्रेशन और बढ़ती जा रही है कि वो उनका है क्या, उनकी आइडेंटिटी क्या है। उनको जो घरों से निकल गए हैं वो जब घरों पे वापस जाते हैं वो भी टूटे फूटे, वहाँ कोई लॉ लीगल सिस्टम नहीं है। तो फिर जब हम ये PTM जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट आ रहा है वो उसका उभरना एक लॉजिकल सी चीज़ बन के आती है। अब आप उसको नाम दें कि उसके बाहर के जो है वो एक लिहाज साजिश के तहत बन के आई, लेकिन ज़रा हमारे यहाँ आदत नहीं होती है कि जो रूट कॉज होती है किसी चीज़ को भी उभरने की, उसको तो हम देखेंगे फ़ौरन लेबलिंग शुरू कर देते हैं कि ये वजह है, ये वजह है, ये वजह है। और देखें अगर इस वक्त फाटा की मेन स्ट्रीमिंग शुरू हो रही होती ना, तो ये जो मूवमेंट है इसकी वैसे ही बहुत ज़्यादा ये डिफ्यूज़ हो जाती, क्योंकि आप ये कह सकते थे कि देखें जो भी आपकी मसाइल हैं या उसका ये जवाब है, और आप उनसे बात कर सकते थे। मगर अगर फाटा की आप मेन स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे तो बेसिकली इग्नोर करने से तो वो बढ़ता चला जाएगा, जो उनका एक सेंस ऑफ एलियनेशन है उसका क्या करेंगे फिर, वो कब तक चलेगा वो। यानी एक वो आपकी बात ठीक हुई, वो बात जो है कि वो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो है ना उसके बारे में तरह तरह की बातें फैलाई जा रही हैं, हकीकत कितनी है कितनी नहीं है, लेकिन ये है कि वो रूट कॉज को देखना चाहिए था कि पहले आप उसको एड्रेस करें, ताकि अगर वो इस तरह के एलिमेंट हैं तो उनको ये मौका ही ना मिले कि हमें कन्विंस करने पे आ जाएं और हम भी कुछ कन्विंस होना शुरू हो जाए कि उनकी बात में वज़न है। आरफा आपका शुक्रिया, ज़ाहिर साहब आपका शुक्रिया। हम तीनों को सोमवार 7 बजे तक की इजाज़त चाहिए। खुदा हाफिज़।